are going to start with chapter number 6, the thieves. एक चोर की स्टोरी है बच्चों, उसको रीड करेंगे. We all know that knowledge is power. हम सभी जानते हैं कि knowledge एक पावर है, शक्ति है. But is it powerful enough to change a character? क्या ये शक्ति किसी के चरित्र को बदलने के लिए पर्याप्त है? Is it powerful enough to transfer a hardcore thief into a true gentleman? क्या ये शक्ति किसी कठोर चोर को एक साहसी व्यक्ति में बदल सकती है? वो read the story to find it out on your own. तो आगे बढ़ो, स्टोरी को पढ़ो और खुद से जानते हैं कि क्या ये हो सकता है. I was still watching a thief when I met Arun, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful lad. मैं एक चोर को देख रहा था जब मैं अरुण से मिला, तो तब मैं 15 का था और मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था. Arun was watching a wrestling match when I approached him. तो अरुण जो था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था और मैं भी उसको अप्रोच कर रहा था. He was about 20, वो लगभग 20 का था. A tall lean fellow and he looked kind and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to gain this young person's confidence. तो मैं उस नौजवान की कॉन्फिडेंस को देख रहा था, तो इसमें कुश्ती लड़ रहा था. He seemed quite fascinated by the wrestling. जो एक शांत फेस को लेकर उसमें कुश्ती लड़ रहा था. Two well-known men slid about in the soft mud, grunting and slapping their thighs. तो उसमें 2 तेल लगाए हुए व्यक्ति जो थे, जिन्होंने अपनी शरीर पे थोड़ा कीचड़ लगाया हुआ था, वो अचानक इसमें आते हैं और अपनी थाई पर ताली मारते हुए अंदर आते हैं. When I got Arun into conversation, he didn't seem to realize I was a stranger. तो जब मैं अरुण से मिला था, उससे बातें कर रहा था, तो ऐसा नहीं लगा उसे कि मैं एक अजनबी हूँ. You look like a wrestler yourself, I said. तो मैंने कहा कि तुम एक रेसलर लग रहे हो मुझे. So do you? He replied. तो उसने रिप्लाई किया कि तुम भी लग रहे हो. Which put me out of the stride for a moment because at the time I was rather thin and bony and not very impressive physically. जब उसने कहा कि वह भी एक रेसलर लग रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही पतला और बहुत ही कमज़ोर फील करता था फिजिकली. Yes, I said I wrestle sometimes. तो मैं कभी कभी कुश्ती कर लिया करता हूँ. What is your name? दीपक, I lied. तो तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने दीपक बताया, मैंने झूठ बोला. दीपक was about my 5th name. तो दीपक मेरा 5वां नाम था. I had earlier called myself रणबीर, सुधीर, त्रिलोक and सुरिंदर. और अभी से पहले मुझे कुछ लोग रणबीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरिंदर के नाम से जानती थी. After this preliminary exchange, Arun confined himself to comments on the match and I didn't have much to say. After a while, he walked away from the crowd or spectators. उसके बाद वो उस भीड़ के आसपास से थोड़ा दूर चला गया, उस क्राउड से. I followed him और मैं भी उसके पीछे उसके पास चला गया. Hello, he said, enjoying yourself? I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ. He didn't stop walking. उससे चलना नहीं रोका. And what makes you think I want someone to work for me? मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ काम हो जो मैं कर सकूँ. Well, I said, I have been
wandering about all day looking for the best person to work for. When I saw you, I knew that no one else had a chance. जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मैंने जाना कि तुम्हें एक चांस मिलना चाहिए. You flatter me, he said. That's all right, but you can't work for me. Why not? लेकिन तुम मेरे लिए कोई काम नहीं कर सकते. लेकिन क्यों? Because I can't pay you. क्योंकि मैं तुम्हें कोई पे नहीं कर सकता हूँ. I thought that over for a minute, perhaps I said, Mr. My man, can you feed me? I asked. Can you cook? He asked. If you can cook, he said, I'll feed you. He took me to his room and told me I could sleep in the veranda. But I was nearly back on the street that night. लेकिन जब वो वापस सड़क पर रात में आया, the meal I cooked must have been terrible because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way, and then he could help laughing. He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes. वो अपने बेड पर बैठा और लगभग 5 मिनट तक हंसता रहा. And later patted me on the head and said, "Never mind, he had teach me to cook in the morning." तो इसके बाद वो मॉर्निंग में उसको कुकिंग करना सिखाएगा. नॉट ओनली डिड ही टीच मी टू कुक, और केवल वो मुझे खाना बनाने नहीं सिखाएगा, बट ही टॉट मी टू राइट माई नेम, बल्कि मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा. एंड ही सेड ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसके बाद वो जल्दी मुझे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा. एंड एड मनी ऑन पेपर व्हेन यू डिडंट हैव एनी इन योर पॉकेट. लेकिन उसमें उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे पेपर लेने के लिए, उसकी पॉकेट में कोई भी मनी नहीं थी पैसे लेने के लिए. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अरुण. तो वो शांति से काम करने लगा अरुण के लिए. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग. उसके बाद मॉर्निंग में उसके लिए टी बनाई और बाद में वो दोनों शॉपिंग के लिए चले गए. आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 25 पैसे ए डे. उसके बाद हमने अपना पूरा दिन सामान खरीदने में लगा दिया और पूरे दिन की शॉपिंग में हमने 25 पैसे जो थे प्रॉफिट के बचा लिए थे. आई वुड टेल अरुण दैट राइस वॉज 56 पैसे ए पाउंड. तो मैंने बताया अरुण को कि जो चावल थे वो 56 पैसे पाउंड के थे. I think he knew I made a little money this way, but he didn't mind. He was not giving me a regular base. I was really grateful to Arun for teaching me to write. मैं बहुत ही grateful था कि अरुण मुझे लिखना सिखाएगा. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि मैं अगर लिखना सीख सकता हूँ तो मैं एक एजुकेटेड मैन नहीं बन सकता. देयर वुड बी यानी अचीवमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है. इट माइट इवन बी एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट. अरुण मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would be borrowing 1 week, landing the next day. He would keep worrying about his next check, but as soon as it arrived, तो जल्दी वो थोड़ा दुखी हुआ अपने नेक्स्ट चेक के लिए, लेकिन जल्दी वो उसके पास पहुंच जाएगा. He would go out and celebrate lavishly. कचहरी इसको मिल गया और वो उसके बाद उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं. One evening he came home with a bundle of notes, and at night I saw him tuck the bundle under his mattress at the head of the bed. तो एक दिन शाम को उसके पास घर पे एक नोटों का बंडल आया था और रात को जब वो बंडल उसने देखा था तो उसने देखा कि वो उसने अपने बेड के मैट्रेस के नीचे रख दिया था. I had been working for Arun for nearby a fortnight, and apart from the
shopping had not done much to exploit him. I had every opportunity for doing so. I had a key to the front door, which meant I had access to the room whenever Arun was out. तो उसके पास फुल अपॉर्चुनिटी थी कुछ भी करने के लिए. उसके पास फ्रंट डोर की भी मेन की थी और वो ये भी जानता था कि वो अरुण जब कहीं बाहर होगा तो उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर की थी. He was the most trusting person I had ever met. तो वो उसमें बहुत ज़्यादा उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था जिससे वो अभी मिला था. That was why I couldn't make up my mind to rob him. It's easy to rob a greedy man because he deserves to be robbed. It's easy to rob a rich man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a poor man, even one who really doesn't care if he is robbed. A rich man or a greedy man or a careful man would not keep his money under a pillow or mattress. He had locked it up in safe place. तो यहाँ पर क्या था कि उसने जो था अपने पैसों को एक मैट्रेस में पिलो के नीचे छुपाया हुआ था और कोई भी सेफ प्लेस पर उसने उस पैसे को लॉक नहीं किया हुआ था. Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge. तो अरुण ने क्या किया उस मनी को जहाँ पर बच्चे खेलते हैं या कोई भी उसको उठा सकता है उसने उसको वहीं पर रख दिया. उसके अंदर इसकी कोई भी बिना किसी नॉलेज के. It's time I did some real work. I told myself I am getting out of practice. If I don't take the money, he'll only waste it on his friend. He doesn't even pay me. और वो मुझे कुछ भी पे नहीं करता जबकि Arun was asleep. तो अरुण सोया हुआ था. Moonlight came in from and veranda and fell across the bed. I sat upon the floor, my blanket wrapped around me, considering the situation. तो जैसे ही मैं फ्लोर पर उठा जो मेरा ब्लैंकेट था वो एकदम रैप था चारों तरफ से मेरी तरफ और मैं इसी सिचुएशन में था. There was quite a lot of money in the bundle and if I took it I would have to leave town. I might take the 10:30 express to अमृतसर. उसने सोचा अगर वो शांति से इस नोट का बंडल को उठा लाया था और वो ये शहर यहाँ से छोड़कर चला जाए 10:30 बजे के आसपास तो वो यहाँ से अमृतसर पहुँच सकता है. Slipping out the blanket, I crept on all fours through the door and up to the bed and peeped at Arun. He was sleeping peacefully with a soft and easy breathing. तो वो बहुत शांति में सो रहा था. बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल सांसें लेते हुआ बहुत ही शांत था. His face was clear and unlight. उसका तो फेस था एकदम साफ था और एकदम मासूमियत में वो सांसें लेकर सो रहा था. Even I had more marking on my face, तो mine were mostly scares. तो उसका जो चेहरा था वो काफ़ी डरा हुआ था. My hand took in on an identity of its own as it slid around under the mattress, the fingers searching for the notes. तो उसने बहुत ही डरते हुए उसने क्या किया उसके मैट्रेस के चारों तरफ हाथ लगाया उंगलियां लगाई और अपने फिंगर से उन नोटों को सर्च करने लगा. They found them. उसने उस गड्ढे को पा लिया and I drew them out without a crackle. Arun sighted in his sleep and turned on his side towards me. इसके बाद अरुण ने वापस से टर्न किया जिस साइड पे वो खड़ा था जहाँ से वो खड़े होकर नोटों को सर्च कर रहा था. अरुण ने वापस उसी साइड टर्न कर लिया. My free hand was resting on the bed and his hair touched my fingers. तो मेरा हाथ जो है मैंने वहीं पे फ्री कर दिया. मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया सब कुछ और मैं वहीं बेड के पास खड़ा हो गया और उसके जो हेयर थे वो मेरी उंगलियों से टच हो गए थे. I was bitten when his hair touched my fingers and crawled quickly and quietly out of the room. तो
मैं काफ़ी डर गया था कि उसके जो हेयर जो थे मेरी उंगलियों से टच हो गए और वो बहुत ही शांति से उस रूम से बाहर आ गया। चुपचाप वो वहाँ से बिना पैसे उठाए वापस आ गया था। When I was in the street, I began to run. उसके बाद वो सड़क पर गया था कि वहाँ से वो दौड़ रहा था। I ran down the बाजार रोड to the station. अब वो बाजार रोड की तरफ दौड़ रहा था स्टेशन के लिए। The shops were all closed. जितनी भी दुकानें थी सब बंद हो गई थी। But a few lights came from upper windows. लेकिन कुछ विंडोज से लाइटें बाहर रोड पर दिखाई दे रही थी। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I felt I had to stop and count the notes, though I knew it might make me late for the train. तो उसने क्या पाया कि उसे अब नहीं रुकना चाहिए नोट्स को काउंट करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने ट्रेन के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। It was already 10:20 by the clock tower, और 10:20 अभी पहले से ही टाइम हो चुका था और 10:30 पर उसकी ट्रेन थी अमृतसर के लिए। I slowed down to a walk, और वो धीरे धीरे दौड़ता गया। And my fingers flicked through the notes, और उसकी उंगलियां जो थी वो नोटों की गड्डी को पकड़े हुए थी। There were about 100 rupees in fives. A good haul. I could live like a prince for a month or two. अब उसे लग रहा था कि वो एक राजा की तरह रहेगा मंथ 2 मंथ तक, महीने 2 महीने तक। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. तो जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचता है वो रुका नहीं और सीधा टिकट ऑफिस पर गया। I had never bought a ticket in my life. आज तक उसने कभी कोई टिकट नहीं खरीदा था अपनी लाइफ में, but dashed straight on the platform. तो सीधे वो प्लेटफॉर्म पर गया। The अमृतसर एक्सप्रेस was just moving out. It was moving slowly enough for me to be able to jump on the footboard of one of the carriages, but I hesitated for some urgent, expendable reason. I hesitated long enough for the train to leave without me. When it had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. The knowledge that I had 100 stolen rupees in my pajamas only increased my feeling of isolation and loneliness. तो उसकी जो ट्रेन थी वो छूट गई और वो वहीं प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा था। उसके पजामे में वही 100 रुपीज़ थे जो उसको बार बार isolation फील करा रहे थे। I had no idea where to spend the night. I had never kept any friends. उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो ये नाइट कैसे स्पेंड करे, कहाँ स्पेंड करे। Because sometimes friend can be one's undoing. I didn't want to make myself conspicuous by staying at a hotel. तो उसके बाद उसने सोचा कि क्यों नहीं वो अपने लिए किसी होटल में वो साथ ठहरे। And the only person I knew really well in town was the person I had robbed. तो वो जानता था कि वास्तव में सब मुझे शहर पे एक चोर के नाम से जानते थे। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. I kept thinking of अरुण। तो उसके बाद जैसे ही वो चलता गया बाजार में आगे तो उसको अरुण का विचार आया। He would still be asleep peacefully, unaware of his loss. तो उसने सोचा कि वो अभी ऐसे ही सोया हुआ होगा और जब वो एकदम से अपने नुकसान के अपनी चोरी को देखेगा तो वो एकदम से बहुत ही परेशान हो जाएगा। I have made a study of men's faces. When they have lost something, the greedy man shows panic, the rich man shows anger, the poor man shows fear. But I know neither panic nor anger nor fear would show on Arun's face. When he discovered the theft, only a terrible sadness, not for the loss of the money, but for the loss of trust. तो यानी यहाँ पर वो केवल उसके पैसों को नहीं चुराया था, उसने उसके विश्वास को भी चुराया था स्टोर में।
क्योंकि अरुण उस पर बहुत विश्वास करता था, उसको पढ़ाता था और उसके लिए सब कुछ करता था। तो यहाँ पर उसने केवल उसके पैसों की चोरी नहीं की थी, उसके विश्वास की भी चोरी की थी। आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द मैदान एंड sat down on a bench. The night was a little cold and I regretted not having brought Arun's blanket along. तो अब यहाँ पर रात में मेरे बहुत थोड़ी ठंड हो रही थी और मुझे रिग्रेट हो रहा था काफ़ी अरुण के लिए। I light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining heavily और जल्दी ही बारिश होने लगी थी बहुत। My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind brought the rain whipping across my face. तो मेरा शर्ट और पजामा जो था वो धीरे धीरे बारिश के पानी में गीला होता रहा और ठंड बढ़ती गई और बारिश से मेरा फेस जो था वो पूरा भीग गया था। I told myself that sleeping on the bench was something I should have been used to by now, but the veranda had softened me. I walked back to the bazaar. इसके बाद मैं वापस बाजार की तरफ लौटा and sat down on the step of a closed shop. उसके बाद एक पास की बंद शॉप के पास बैठा। The clock showed midnight. तो जो घड़ी जो थी वो दिखा रही थी कि रात के 12 बजे थे। I felt for the notes. उसके बाद उसने नोट्स के लिए सोचा। They were still with me but had lost their and were damp with rain water. उसके बाद उसने देखा कि वो बारिश के पानी से गीले हो गए थे। Arun's money in the morning, he would probably have given me a rupee to go to the picture, but now I had it all. No more cooking or learning to write whole sentences. तो उसे लगा कि अब वो उसके पास जाएगा तो ना वो उसे कुकिंग सिखाएगा, ना ही उसको पढ़ना लिखना सिखाएगा और कोई भी होल सेंटेंसेस भी नहीं सिखाएगा। They were something I had forgotten in the excitement of 100 rupees. वो 100 rupees की एक्साइटमेंट में ये सब भूल गया था कि वो उसे कुकिंग भी सिखा रहा था, पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, सब कुछ सिखा रहा था। Whole sentences I knew could one day bring me more than 100 rupees. मैं जानता था कि एक दिन मैं इन 100 रुपीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं ले जा सकती, मैं इसके पास से 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं ले जा सकता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल, बट टू बी रियली बिग मैन, ए वाइज एंड सक्सेसफुल मैन, दैट वॉज समथिंग एल्स। I should go back to Arun. I told myself it's only to learn how to write. उसके बाद मुझे वापस अरुण के पास जाना चाहिए। उसने अपने आप से कहा और कहा कि केवल तुम्हें पढ़ना और सीखना चाहिए, यानी बजाय तुम्हें स्टोरी के तुम्हें उससे पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। Perhaps it was also concern for Arun that drew me back. A sense of sympathy is one of my weakness, and through hesitations over a theft I had often been caught. उसके बाद उसने सोच लिया था कि वो अरुण के लिए काफ़ी कंसर्न हो गया और वापस वो उसके पास जाना चाहता था। उसके अंदर एक सेंस थी सहानुभूति की, तो यही एक उसकी कमजोरी थी जिसकी वजह से वो वापस उसके पास जा रहा था और जिससे कि वो पकड़ा भी ना जाए। ए सक्सेसफुल थीफ मस्ट बी pitiless. I was fond of Arun, my affection for him, my sense of sympathy, but most of all, my desire to write whole sentences drew me back to the room. तो उसको क्या था, उसको चोरी से इतना ज़्यादा वो नहीं था। उसे लगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इसका डिज़ायर जो है वो पढ़ना और सीखना है। मैं होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस बनाना, लिखना, पढ़ना सीखना चाहता हूँ। आई हरिड बैक टू द रूम एक्सट्रीमली नर्वस। अब वो वापस उसके अरुण के रूम में आता है काफ़ी नर्वस होते हुए। फॉर इट इज़ ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। इफ आई वॉज caught beside the bed now with the money in my hand or with my hand under the mattress,
There could be only one explanation, that I was actually stealing. If Arun woke up, I would be lost. इसके बाद वो उसके कमरे में गया और उसने धीरे धीरे उसके बेड पर जो मैट्रेस थी, मैट्रेस के नीचे पैसों को रखने की कोशिश की और उसके हाथ जो थे वो काफ़ी काँप रहे थे, वो काफ़ी परेशान हो रहा था, क्योंकि जितना आसान उसके लिए चोरी करना था उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल था उसके लिए वापस उन पैसों को वहाँ पर रखना, क्योंकि वो एक्चुअली में उसने चुराए थे, इसीलिए उसे डर लग रहा था कि यदि अरुण जाग गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो उन पैसों को रखते हुए काफ़ी डर रहा था, क्योंकि वो पैसे उसने अरुण के चोरी किए थे और अगर अरुण जाग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे लगेगा कि उसने चोरी की है। I opened the door clumsily, then stood in the doorway in clouded moonlight. Gradually, my eyes became accustomed to the darkness of the room. उसके बाद उसने देखा कि रूम में बहुत ही अंधेरा हो रखा था। अरुण was still asleep. अरुण जो था वो सोया हुआ था। I went on all fours again and crept noiselessly to the head of the bed. और वो बिना आवाज़ किए हुए उसके बेड के पास जाता है। My hand came up with the notes. I felt his breath on my fingers. मैंने अपनी उंगलियों से उसकी सांसों को महसूस किया। I was fascinated by his tranquil features and easy breathing and remained motionless for a minute. और कुछ समय के लिए वो motionless हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। Then my hand explored the mattress. उसके बाद उसने अपने हाथों से मैट्रेस को एक्सप्लोर किया। Found the edge, slipped under it with the ropes. और उसके बाद उसने इस मैट्रेस के नीचे उन लोटों को रख दिया। I woke late next morning to find that Arun had already made the tree. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लेट जागा तो उसने क्या देखा कि अरुण ने पहले से उसके लिए चाय बनाई हुई थी। I found it difficult to face him in the harsh light of the day. तो उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो उस दिन की रोशनी में उसको फेस कर सके, क्योंकि उसने उसके पैसों की चोरी की थी। His hand was stretched out towards me. के जो हाथ थे वो काफ़ी स्ट्रेच हो रहे थे। There was a 5 rupees note between his fingers. जब उसके हाथों में एक 5 रुपए का नोट देखा था, my heart sank. उसका हाथ जो था काफ़ी घबराने लगा एकदम से। I made some money yesterday, he said. वह बोला कि उसने कुछ दिन पहले उसने कल ये पैसे कमाए थे। Now you will be paid regularly. My spend rose as repeatedly as it had fallen. I congratulated myself on having returned the money. उसके बाद उसने अपने आप को खुद को बधाई दी कि उसने उसके जो पैसे थे वो वापस कर दिए थे। But when I took the note, I realized that he knew everything. The note was still wet from last night's rain. उसके बाद जब वो नोट की साइड देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ अरुण को इन नोटों के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि वो जो नोट जो था वो नाइट में बारिश हुई थी लास्ट नाइट में, उससे वो गीला हो गया था, इसलिए उसे लगा कि वो उससे सब कुछ रियलाइज हो गया था। Today I'll teach you to write a little more than your name, he said. उसके बाद वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम्हें तुम्हारा नाम किस तरह से लिख सकते हैं। He knew, but neither his lips nor his eyes said anything about their knowing. I smiled at Arun in my most appealing way, and the smile came by itself without my knowing it. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अरुण जो था उसने जो ऑथर जो था इसमें वो बता रहे हैं कि जो चोर जो था उसने जिसके पास अरुण के पास वो रहता था, अपने दोस्त के पास जिसके पास वो रहता था, वहाँ पर वो कुकिंग सीख रहा था, पढ़ना लिखना सीख रहा था। उसने उसी के पैसे चुरा लिए, लेकिन बाद में उसने उसके पैसे रिटर्न कर दिए क्योंकि उसके मन ने उसको गवाही नहीं दी और
उसके पास वो वापस आ गया, लेकिन उसके मन में यही रिग्रेट रहा कि उसने अपने उस दोस्त के पैसे चुरा लिए थे। So students, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.